السلام علیکم عزیز مستقبل کے اساتذہ کرام اور میرے پیارے بچوں، میں نے اس سے پہلے بھی کئی ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری بات تھوڑا آپ کو تلخ لگی ہوں گی، کیوں بولے تو میں نوٹس بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میری اس میں ایک ہی تمنا ہے کہ آپ لوگ پورے اس سے مستفیض ہو جائیں، تاکہ آنے والی زندگی میں جو نوٹس آپ کے کام آئے۔ آپ کو جس دن نوکری مل گئی اس دن یہ پیڈاگاجی اور میرا ویڈیو ہونا تو ڈیلیٹ کر دو، کیا بھی پرابلم نہیں۔ البتہ جب تک آپ لوگ یہاں پر تھوڑا خیال رکھیں، اور کیونکہ یہ میری تجربے کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، تقریباً میں 40 سال اور 32 سال میری خدمت کیا ہے، تقریباً میرے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے۔ آپ کی جتنی عمر ہے اتنی سے اس سے زیادہ میری سروس ہوئی ہے ڈپارٹمنٹ میں، اور پرائیویٹ کی یہ جب بات کرتا ہوں تو تقریباً میں 40 سال میرے زندگی کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے ہی وقف کیا ہوں۔ میرے تجربے کے تحت آپ لوگ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جب ہمیں پڑھتے تھے تب کیا ہے، صرف پاس ہونا تھا، سال میں ایک بار دو بار ایگزام رہتے تھے، پاس ہو جانا تھا، 21 بار ایگزام رہتا تھا، تب جسٹ پاس ہوا تو بھی کیا بھی پرابلم نہیں، نوکری مل جاتی تھی۔ مگر زمانہ جیسے جیسے ترقی کرتے گیا، یہ لرننگ کیا ہے، اکتساب بھی اتنا زیادہ اسٹینڈرڈ پن آتے گیا اس میں۔ اب کیا ہے کہ تو جو ٹی ٹی جو ہے، سی ٹی، ٹی ٹیٹ اور یہ پورے جو کمپٹیٹیو ایگزام ہیں، ہر ایگزام میں پیڈاگاجی کا استعمال ہو رہا۔ یہاں پیڈاگاجی میں اب میں آلریڈی 2 چیپٹرز آپ کو مکمل کیا ہوں، تو تیسرا چیپٹر میں نے اکتساب لرننگ کے لرننگ پر پوائنٹس اٹھایا ہوں۔ اس کے بارے میں تھوڑا مختصر سا آپ کا اس کا تعارف کراتا ہوں۔ لرننگ تھیوری آف لرننگس کربل کو ہے، اس میں کی پوائنٹس اس میں آگے کری ہوں۔ اس سے پہلے تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ سن لیں۔ یہ جو تھیوری بنایا ہے گیسٹالٹ کر کو، GESTALT گیسٹالٹ بول کو ہی نہیں، اس کا ایک نام، یہ تھیوری بنا اس والے کا نام گیسٹالٹ کے ایک جرمنی ورڈ ہے۔ اس کے پورے معنی ہیں گروپ میں کام کرنا، گروپ میں سیکھنا، گروپ میں ایک کون سا تو ایک آرگنائز ورک کرنا، ایک ٹیم ورک کرتی نا، ویسا اسے یہ گروپ میں کام کرنے کو ہی نہیں کیا کرے، گیسٹالٹ بول کو اپنا اس کا نام دیا، اس کے معنی گروپ میں کام کرنے کے۔ اس میں 3 آدمی کا گروپ ملنے کو ایک کام کریا، کون سی اکتساب کی تھیوری کے اوپر، اور اس کے 3 آدمی میں رادیمیر کر کو پہلا نام، WERTHEMER، رادیمیر، کوفکا اور کوہلر، یہ 3 آدمی نے مل کر کام کرے۔ انہوں کیا کرے گا تو انسائٹ لرننگ کے اوپر ایک تھیوری بنائے۔ انسائٹ لرننگ کا تو اندرونی سطح پر، دماغی سطح پر جو یہ ہوتی لرننگ ہوتی، اسے انسائٹ لرننگ کربل کو نام دیے۔ انسائٹ لرننگ میں آپ کو جانتے ہیں، کوہلر کا ایک بہت بڑا ہی وہ سلطان کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ تھا، وہ ایکسپیریمنٹ کو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں یہ کریا۔ اس میں 5 انہیں سٹیجز دیا، 5 سٹیجز کرے کوہلر کی تھیوری کو انسائٹ لرننگ میں۔ تو اس میں پہلا پوائنٹ کیا کہتا، لرننگ سروے کریا۔ اس کے بعد سروے میں کیا کرنا، اس کے پورا بیک گراؤنڈ سروے کر لینا انہیں۔ اس کے بعد دوسرا پاز کریا، وہاں کو کھڑا کر لے کو، سروے میں کھڑا کر لے کو کیا آگے کرنا۔ اس کے بعد ٹرائل دیکھا اسے۔ اس کے بعد وہ یہ کیلا رکھو یہ کرا نا، اس کا ایکسپیریمنٹس کرا انہیں، وہ ایکسپیریمنٹ کے تحت بول رہا ہوں میں۔ وہاں فرسٹ ٹرائل، سیکنڈ، لاسٹ نیکسٹ ٹرائل کریا۔ اس کے بعد جب کیلا حاصل کر لیا انہیں، وہ کون چمپینزی، تو وہاں اسے لرننگ آ گئی کر بول کو، اس کا ان کا مقصد تھا، کس کا، کوہلر کا، وہ پوری ٹیم کا۔ اس کے بعد لاز اینڈ پرنسپلس آف لرننگ، اصول کے لرننگ کے اصول کریں، اکتساب کے اصول۔ اب یہاں پر کیا ہے گا تو یہاں بھی ایک 4 پوائنٹ استعمال کرا انہیں، پرنسپل آف آرگنائزیشن، اس کے بعد لا آف نیئرنیس، لا آف سملیرٹی، ایجوکیشن امپلیکیشن۔ اب یہاں کیا ہے تو آرگنائزیشن کا تو
एक ग्रुप में काम करने के वास्ते एक ये बनाए, थ्योरी बनाए। उसके बाद लॉ ऑफ नियरनेस के मानी मालूम हो नज़दीकपन में। अब एक ताजमहल का एक हमें ताजमहल के बारे में पढ़ाना रहा है, बोलना रहा, सिखाना रहा, तो हमें क्या करते हैं ताजमहल का फ़ोटो की ये की अगर नज़दीक रहे तो लीजा नियर से उसे दिखा डाले तो वो तकरीबन उसे मालूमात होती हैं कर को लॉ ऑफ नियरनेस कर करे। बाद में लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का तो सेम टाइप से फॉर एग्जांपल बच्चे को जमा के हिसाब आती, उसके बाद तफरीक के उसे आते नहीं, कोई सिमिलर रहती सेम रहती हैं मगर वहाँ ज़रा चेंज रहता। उसके वास्ते उन्होंने क्या करा सिमिलरिटी का एक लॉ इस्तेमाल करा। जमा के बाद उसे नेक्स्ट क्या करना, पहले जमा सिखाना, उसके बाद तफरीक सिखाना, उसके बाद ज़रब सिखाना, तक़सीम सिखाना, ऐसा। उसके बाद एजुकेशन इम्प्लीकेशन या एजुकेशन में कैसा इम्प्लीमेंट ला सकते हैं हमें करबल को ये करा। बाद में इसके पार्ट ऑफ बेटर होल करबल को एक बोला एक ये बोला है नो पार्ट कर को कौन सा तो काम टुकड़े कर को करने से पूरा काम एक पूरा प्रोग्राम तमाम बच्चों को साथ में पेश कर डाले तो एक प्रोजेक्ट के टाइप को कर डाले तो अच्छा रहता है करने का इनका मेथड किसका कोहलरों का। बाद में इन्वेंशन, इससे क्या होता है तो नई चीज़ इन्वेंट करने की इनकी सलाहियत आती और डिस्कवरी इन नए चीज़ों को ढूंढ निकालने की सलाहियत आती और इमेजिनेशन इनको तस्वीराती ख़यालात बढ़ती। रीजनिंग थेरी जो तस्वीरात के ऊपर जो थेरीज बनाती हैं एक ये पार्ट बनाती हैं एक हिस्सा बनाती हैं उसके ऊपर तो ये होती है कर को। बाद में और इंस्ट्रूमेंट इनमें क्या होती है कंस्ट्रक्टिविटी पैदा होती, क्रिएटिविटी पैदा होती, इतनी चीज़ें पैदा होती। और इसमें मेन 2 पॉइंट्स आती हैं, वो पॉइंट्स का यहाँ पर मैं आपको जिक्र करता हुआ आगे के लेसन की तरफ जाता हूँ क्यों ये बैकग्राउंड है। अगर जल्दी हुआ हो तो आप वीडियो को पास कर लें और नोट्स लिख लें। अब इससे पहले मैं जो मेरे स्टेटस में 1-2 पॉइंट्स तो बच्चे मैसेज करे थे उनका ये डाला था, वो डालने का मेरा एक ही मकसद है वो बच्चे देख रही हैं कर को और देख रही हैं और हमारे यूट्यूब से उन्हें फ़ायदा उठा रही हैं कर को। आप लोग पास होना मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती हो। क्यों बोले तो ये नेग्लिजेंसी कर को थोड़े बच्चे ना अहल हो जाती हैं। इसमें अहलियती एग्ज़ाम है, ना अहल होना क्या है कि तो यहाँ एलिजिबल होना चाहिए सबसे बड़ा काम। इसमें एलिजिबल हो गए तुम्हें इंशाल्लाह गारंटी तुम ना CET इससे ईजीली क्लियर कर सकते हैं तुम्हें। अब यहाँ मेरा ये क्या है कि तो मेरा एक्सपीरियंस क्या कर बोलता कर बोले तो ये एक लॉन्ग चैप्टर से बड़े चैप्टर हैं पूरे भी एक से एक बड़े हैं। इनकी थ्योरी कम से 1400-1500 पेज पर मुश्तमिल हैं। मैं इनको क्या कर रहा हूँ कि तो एक तो उर्दू किताबों का मुतालिया कर रहा हूँ, दूसरे इंग्लिश का मुतालिया कर रहे हैं और कन्नड़ा का मुतालिया कर रहे हैं। इन तमाम को मिलाकर मैंने एक प्लेटफॉर्म पर लाकर आपको उर्दू और इंग्लिश में आसानी से आप समझ सके, मेरा ये उम्मीद है, इंटेंशन है। ये मेरा लर्निंग का मेन डोमेन है। तो आप इसमें 2 पॉइंट ख्याल कर लें, उसके बाद मैं थ्योरी तरफ जाता हूँ। इसमें मेन क्या कहते हो लर्निंग के 4 अक़साम ही कर को बोलता है इन्हें कौन है कोहलर उन्हों से भी 4 इनका ये बोला मैं जो ये है गेस्टाल्ट बोल को बोला उनके तीनों आदमी की थ्योरी को एक ही मकसद को है इन्हों एक पॉजिटिव ट्रांसफ़र लर्निंग, दूसरा नेगेटिव ट्रांसफ़र लर्निंग, ज़ीरो ट्रांसफ़र लर्निंग, बाईलिटरल ट्रांसफ़र लर्निंग। ये 4 लर्निंग ही यहाँ पर। पहला लर्निंग कौन सा है तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या है तो एक बच्चा साइकिल चलाता तो उसे स्कूटी चलाने में आसानी होती, तो उसका साइकिल का हैंडल का ग्रिप और ब्रेक का ग्रिप वो सब उसे पहले साइकिल में सीख लिया था उन्हें, उसके बाद उसे स्कूटी चलाने में आसानी हुई, उसे पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफ़र लर्निंग कहते हैं। और उसके बाद दूसरा बहुत बच्चा नेगेटिव ट्रांसमिशन ऑफ मीटिंग ये कर बोलता नेगेटिव का तो वो बच्चे को साइकिल चलाने आता, बस चलाने आता, लॉरी चलाने नहीं आता, वैसा उसे नेगेटिव कहते हैं। वो नहीं आने की चीज़ को हमें क्या कहते हैं नेगेटिव कहते हैं। उसके बाद ज़ीरो ट्रांसफ़र बाईलिटरल ज़ीरो ट्रांसफ़र का तो ज़ीरो ट्रांसफ़र लर्निंग कर बोले थे कि चेक में एक बच्चा उसे इंग्लिश आती,
इंग्लिश आती, इंग्लिश पढ़ रहा लिख रहा, बाद में उन्हें अरबी सीखने जा रहा है, अरबी से इंग्लिश का क्या तो बीच में ये है ताल्लुक़ है नहीं है, वही तो वो ऐसा नहीं रहा तो ताल्लुक़ को क्या कहते हैं, जीरो ट्रांसफ़र लर्निंग कहते हैं। उसके बाद बाईलिटरल ट्रांसफ़र कहते हैं। बाईलिटरल का तो एक काम में एक बच्चा मैं सीधे हाथ से लिखता हूँ, दावें हाथ से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, दावें हाथ से भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये दोनों हाथों से मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, मुझे सीधे हाथ से बहुत अच्छा आता लिखने, दावें हाथ से कोशिश कर रहा हूँ ना, ऐसी कोशिश को हमें बाईलिटरल ट्रांसफ़र कहते हैं। तो ये चारों ट्रांसफ़र का भी एक साइकिल की मिसाल दिया, एक बस की मिसाल दिया, तीसरा है ना ज़ीरो ट्रांसफ़र की मिसाल दिया, चौथा है ना बाईलिटरल ट्रांसफ़र। ये चारों की भी मैं मिसाल दे चुका हूँ। हो सकता है ज़रा जल्दी हुआ होगा, आप लोग थोड़ा पॉज कर लें या वीडियो को बार बार देखें, देख कर मैं खुद नोट्स बनाता हूँ, आप भी नोट्स बना लें, क्योंकि मेरी तजुर्बे के तहत बात बोल रहा हूँ। आप लोग नोट्स जब तक नहीं बनाते तब तक ये नहीं, तुम्हें मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों से, मेरे पूरे वीडियो, मेरा हर वीडियो 1 मार्च पर आपको गारंटी देता, एक चैलेंज है मेरा है, अगर मेरे पूरे वीडियोस देख कर अगर एक बच्चा क्या है ज़िंदगी का आखिरी इम्तिहान में हो, टी फेल होना के आखिरी इम्तिहान में और अगे इम्तिहान शही तो ना तुम्हें ज़िंदगी में मंजे मैं बोल रहा हूँ नहीं, जब तक मैं ये करते रहता हूँ तब तक सिर्फ 1 घंटा मुझे रोज़ दे दें, इंशाअल्लाह मैं ज़िंदगी में एक तुम नई रौनक देने की कोशिश करता हूँ। क्यों बोले तो मेरा एक उसूल है, मेरी भी एक ये है तमन्ना है कि एक शेर याद आ जा रहा है यहाँ पर, वो बुलंदियों पर बैठकर ऊंचाइयों को छूना काम नहीं है मेरा, बुलंदियों पर बैठकर ऊंचाइयों को छूना काम नहीं है मेरा, मेरा काम को देखकर बुलंदियाँ कदम चूमती हैं, ये इंसान ये टाइप बन जाना, म्हणजे आता नहीं कर को छोड़ना नहीं, कितने बार फेल आती मैं इंशाअल्लाह वे पास करतूँ कर बोल को एक चैलेंज ले अपने आप में, ये चैलेंज ले को करे तो इंशाअल्लाह ज़रूर आप कामयाब होती हैं एक दिन क्या, अगर ये पूरे वीडियो हुए तो नेक्स्ट टी में तुम्हें खुद ही रिजल्ट बोलती हूँ तुम्हारा, ख़ास कर को डी.एड के बच्चे आप जब की पढ़ाई अलग है आपकी पढ़ाई अलग है, थोड़ा खाल कर को ये कर लें तो मीनिंग्स ऑफ लर्निंग मेरे चैप्टर के उन्वान की तरफ आ जाता हूँ। ये था बैकग्राउंड इसके बारे में। मीनिंग ऑफ लर्निंग यहाँ क्या है कहते हो, सीखना तजुर्बा और मश्क के नतीजे में रवैया निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली को कहते हैं। सीखना किसे कहते हैं कहते हो, सीखना एक मश्क के नतीजे में रवैये और निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली, रेगुलर तब्दीली होती है ना, उसे हमें सीखना कहते हैं, एक तरह आप करो को बोलते हैं उसे। लर्निंग इज़ नॉट मेयर मैचुरेशन इन इट इन्वॉल्व्स एक्सपीरियंस कर होता। मैचुरेशन क्या है कहते, सीखना सिर्फ पुख्तगी नहीं बल्कि तजुर्बे का नतीजा होता है। सीखना क्या है, सिर्फ पुख्तगी नहीं नतीजे का बल्कि तजुर्बे का नतीजा होता है। अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग कर पूछता है इन्हें, लर्निंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। मैं बोलिया सीखना क्या है, इक्तसाब क्या है, एक मुसलसिल अमल है। उसके बाद सीखने से रवैये में तब्दीली आती है, क्या क्या फ़ायदे हो रही कर को अभी और ज़रा बता रहा हूँ। उसके बाद सीखने से रवैये में तब्दीली आती, लर्निंग या सीखना मकसद पर मुबनी होता है, कौन सा एक मकसद रखो हमें सीखे तो वो मकसद कामयाब होता है। अगर को सीखना इनफरादी भी है और आफाकी भी है, मतलब यह इंडिविजुअल भी है और यूनिवर्सल भी है। तो तीसरा फैक्टर इसका है इन्फ्लुएंस लर्निंग, फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। तो मैं पुख्तगी, जिस्मानी और जहनी तैयारी, यहाँ मैचुरेशन क्या करना, बायोलॉजिकल और रीडनेस कर को ये रख लेना, हमारा एम रख लेना। उसके बाद मोटिवेशन, तरगीब देना, अंदरूनी और बैरूनी मुहर्रिकात को, अपने दिमाग को हरकत में लाना, हाथ पाँव को हरकत लाना, अंदरूनी का तो वो, बैरूनी का तो जो जिस्मानी जिस्म के ऊपर दिखती वो हिस्सों को। और तवज्जा, सीखने पर जहनी यकसवी, अटेंशन हमें रखना चाहिए, सीखने पर जहनी यकसवी है, हमारे दिमाग को कंसंट्रेशन रखो इस सीखना कर को। उसके बाद दिलचस्पी, मजमून से रग़बत। अब यहाँ क्या है, दिलचस्प इंटरेस्ट रखा तो सीखने में यकसवी रही तो हमारा दिलचस्पी आती है और मजमून से रग़बत ज़्यादा होती, और हमारा रवैया मस्बत है या मनफी है, ज़हनीत के ऊपर हमना ताल्लुक़ रखते रहता। याददाश्त में महफूज रखना है और याद करना है।
अब रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग कर बोल को बोलता है। हमारे लर्निंग में हमारा मोटिवेशन कैसा रहना, रोल कैसा रहना का, तो तरगीब सीखने की रफ्तार और मौसरत बढ़ाती है। तो हम यहाँ सीखने की रफ्तार को तरगीबियत क्या है, उसे मोटिवेट करे तो उन्हें जल्दी जल्दी सीखता अगर को। तरगीब तवज्जो को बरकरार रखती है, तरगीब तवज्जो को बरकरार रखती है। बाद में यहाँ पर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कैसा करना है हमें लर्निंग में, बच्चों के साथ हमें कैसा देना इम्प्लीकेशन करना का, तो यहाँ पर तदरीस तालिब इल्म को मरकज़ होनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ अक्सर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कर बोल को इनो भी बोल रही, सो तदरीस तालिब इल्म मरकज़ होनी चाहिए। कौन सा तो एजुकेशन सेंटर का सवाल पूछा तो तुमने चाइल्ड सेंटर कर को दिमाग में आ जाना। ये यहाँ पर चाइल्ड सेंटर के परिचय क्या है, सीखने की तजुर्बात बामानी और पुरकशिश होनी चाहिए। सीखने के तजुर्बात कैसे रहना का, तो अट्रैक्टिव रहना, कोशिश ऐसे रहना देखे तो उनको खुद ब खुद उन्हें मोटिवेट होना, वो करने की कोशिश करना। उस्ताद को क्या करना का, इनफरादी फ़र्क को मुनज़्ज़र रखना चाहिए, मद्देनज़र रखना चाहिए। उस्ताद की इनफरादी फ़र्क क्या है, अभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस कर बोलती ना हमें बच्चा में, वो है ना मद्देनज़र रखो। एक ये बनाना अगर बोल को जो सिलेबस रहता है, वो सिलेबस के तहत यूनिट बनाते हैं ना हमें, यूनिट को इनफरादी तो रखो ये करना अगर बोल को। मुनासिब माहौल सीखने को बेहतर बनाता है। अतः माहौल देना उसे, वैसा हमें उसे सीखने का माहौल दिए तो उसे क्या है, सीखने की मुनासिबत अच्छी होती है कर को। लर्निंग एंड क्लासरूम टीचिंग है, फ़ाल शिरकत सीखने का बेहतर बनती है। अब यहाँ का तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इम्प्रूव्स लर्निंग कर बोलता है ने, हमारी शिरकत क्या है, एक्टिव शिरकत क्या है, वहाँ पर सीखने को बेहतर बनाती है कर को, सीखने को मजबूत करती है और तक़वियत देती है, रीइन्फोर्समेंट करती है वो अगर बोल को। उसके बाद ये काइंड ऑफ मोटिवेशन कैसा हमें उसे ये देते मोटिवेशन कर सकती है, तरगीब दे सकती हैं, तो इसके मज़ीद पॉइंट्स हैं। अंदरूनी तरगीब दिलचस्पी और खुशी से पता होता है। ये गहरे दरिया को गहरे देर पा सीखने में मदद देती है। और उसके बाद बैरूनी तरगीब इनाम, नंबर, तारीफ़, सज़ा से पैदा होती है। जो अंदरूनी तरगीब करती हैं, जो बच्चे को अंदरूनी इशारों के तौर पर उसे इनाम दिया सरका करती हैं, ये बैरूनी तरगीब का तो इनाम देती हैं, तारीफ़ करती हैं, वो इब्तदाई सीखने में मुफीद होती है। यूज़फुल इन प्राइमरी एजुकेशन का बोल को एक है। अब पॉजिटिव मोटिवेशन में मैं बोला पॉजिटिव लर्निंग अलग, पॉजिटिव मोटिवेशन अलग। यहाँ पर तारीफ़ और इनाम के ज़रिए तरगीब देना, मोटिवेट करना, उसे अट्रैक्ट करना, उसके इनाम के मुस्तहक बनाना, वैसा एतमाद और दिलचस्पी बढ़ाती है। तो नेगेटिव मोटिवेशन कौन से रहती हैं, नाकामी या सज़ा के खौफ पर मुबनी तरगीब देना, बाद में आर्जी सीखने का सबब बन सकती है, जल्दी फिसल जाने का। बाद में सोशल मोटिवेशन, यहाँ पर समाजी कबूलियत और पहचान से पैदा होती है। वो उम्र में बच्चा क्या करता रहता है, तो उन्हें अपने आप की अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता रहता, उन्हें किसका भी केयर करता नहीं। मैं गुज़िश्ता वीडियो में एडोलसेंस के वीडियो में बोलता ली हूँ सब चीज़ें। उसके बाद अचीवमेंट मोटिवेशन, कामयाबी हासिल करने और बेहतर कारदगी करने की ख्वाहिश रखती है। ये पूरा पीछे के वीडियो में मैं बोली हूँ। बाद में यहाँ पर टीचर का एटीट्यूड और रवैया कैसा रहना, बिहेवियर कैसा रहना का, तो उस्ताद का रवैया और बर्ताव कैसा रहना का, तो क्लासरूम का माहौल दोस्ताना माहौल में बदलना थे। उसके बाद तदरीसी तरीके सरगर्मी पर मुबनी होना, नली कली खेलो सीखो, ये टाइप के आवाज़ से रहना कर को। और इनाम में तक़वियत, हम जमातों को मिलाकर एक प्रोग्राम बनाना, वालिदैन की हौसला अफजाई कराना, कामयाबी और नाकामी की तजुर्बात पेश करना, जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बोलना। ये एटीट्यूड पर एटीट्यूड मज़ीद नुकात हैं इस पर। एक रवैया किसी चीज़ के बारे में सीखा हुआ मस्बत या मनफी रुझान है। बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड्स कर बोलकर है, रवैया सीखा जाता है, मवरसी नहीं होता का। तो ये रवैया एटीट्यूड क्या है, सीखे जाते हैं, सिखाए नहीं जाते। हाँ, मवरसी नहीं होता, नॉट इनहेरिटेड कर बोल को एक बोल रहा है। एटीट्यूड्स आर चेंजेबल्स, रवैया बदला जा सकता है बशर्ते के उस्ताद वैसा उस किरदार अता करना हो।
بعد میں رویہ سیکھنے اور رویے پر اثر انداز ہوتا ہے، رویہ سیکھنے اور رویے پر اثر انداز ہوتا ہے کر کو. فیکٹر آف انفلوئنسنگ ایٹیٹیوڈ، یہاں پر کیا ہے کہتے انفلوئنسنگ ایٹیٹیوڈ کون سے کہ تو خاندانی پس منظر رہتا، اسکول کا ماحول رہتا، استاد کی شخصیت رہتی، ثقافت اور معاشرہ رہتا، ماضی کی تعلیم و تجربات رہتی. یہ سب بھی بعد میں یہ سب نہیں کرا تو ایزیلی ہوتا اسے سکھانے کے واسطے. کیونکہ تو ایک بچہ ذرا سلو لرنر رہا تو اس کے خاندانی بیک گراؤنڈ میں کوئی بھی تعلیم علم نہیں رہا، وہ پڑھا لکھا نہیں ہوا ہوگا، شاید اس کی وجہ سے اسے ویسے ہم کو پرسنلی کیئر دے کو کرے تو وہ بچے بھی ہمارے ساتھ لرن کر سکتی ہیں گھر کو. اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ امپروز اکیڈمک اچیومنٹ، مثبت رویہ تعلیمی کامیابی بڑھاتا ہے. اور استاد رہنمائی اور ترغیب سے رویہ بدل سکتا ہے. استاد کیا کرے گا تو ایک اچھا ایک یہ بچہ شرارتی بچے کو بھی اسے ذرا بڑا چڑھا کو تو بہت اچھا ہوا، ایسا کر کے ترغیب دلایا تو انہیں اپنا رویہ بدل سکتا ہے اگر کو. اب یہاں پر ملٹیپل چوائس کوسچنس میں اتنا وقت تھیری میں پڑھا اور بولا آپ لوگوں کو میری زبان میں ہی بولا. شاید آپ لوگوں کو میری زبان وتی میں پرفیکٹ اردو بات نہیں کر سکتا، کیوں بولے تو تھوڑا یہاں پر پیورلی اردو کے ورڈس اگر میں استعمال کریا تو آپ لوگ تب یہ نہیں عارضی خارجی ایسے ورڈس آ گئے تو آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے. اس کے واسطے میں کیا کریا گا تو یہ آسان اردو میں بولنے کی کوشش کریوں. اس کے واسطے اب یہاں پر میں نے ایک ذریعے سوالات کو فریم کیا ہے. میں سوالات کا جواب آخر میں دیتا ہوں. آپ لوگ ایک کام کریں، یہاں پر سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جواب ایک کاپی میں لکھ کر جسٹ نمبر دار کو رکھ لیں، اے کا بی کا سی کا ڈی. اس کے بعد لاسٹ میں آپ لوگ چیک کر لیں اور لاسٹ میں ہی آنسرس لاسٹ میں چیک کر لیں. اپنا نتیجہ پہ خود کا محاسبہ کر لیں تاکہ آنے والے ایگزاموں میں آپ کو آسانی ہو سکے. میں ایگزام 2 دن پہلے دے رہا تھا، میں آپشن 5 دے رہا تھا، مگر آج کیا کر سیکھا کہ تو میں میرا اقتصاب کیا ہوا کہ تو نہیں ایک نواں ٹپ دینا بچوں کو، میرے بچے پڑھنا، میرے بچے میرا ایک امید. میں بولا آلریڈی تم نا 1 گھنٹہ مجھے لو انسان انشاءاللہ میں آپ کی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتا ہوں. کیا میں فرشتہ میں کیا میں ولی میں، پھر بھی ہے نا جتنا مجھے معلومات دیا اللہ تعالیٰ اس کے تحت میں ایک آپ کو ایک چراغ بن کر ایک روشنی بن کو آگے آنے کی کوشش کراتا ہوں انشاءاللہ. تو اسی طرح سے میں نے 20 یا 25 سوال فریم کیے ہیں. آپ سوال کو پاس کر دیکھیں اور اس میں جواب دیکھنے کی کوشش کریں. لرننگ از بیسٹ ڈیفائنڈ ایز کر کو دے رہا، سیکھنے کا بہترین تعریف کیا ہے کر کو یہاں پر 4 آپشن ہیں. تو میں آپشن کو کھڑا کر لے، پوز کر لے کو پاس کر لے فون دیکھو، اس کے بعد کون سا جواب آتا ہے اسے ٹک کرو، تمہاری کاپی میں لکھ کر رکھ لو. لاسٹ میں آنسر چیک کر کو انشاءاللہ تمہیں مجھے کل ویڈیو میں میسیج ڈالتے ہیں، یہ ڈالتے ہیں کیا بولتے ہیں تمہارے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. یہ دیکھ کو سر مجھے اتنے پڑھے کر کو یہ مجھے آپ پورے کا پورا سیکھنے کو بھی آپ کے کامنٹ باکس فری ہے. کامنٹ باکس میں کامنٹ کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی یہ ہوئی کا ترغیب مل سکے. تو وچ از دا فالوئنگ از ناٹ اے کریکٹرسٹک آف لرننگ کر کو، یعنی درج ذیل میں کون سا سیکھنے کی خصوصیت نہیں ہے کر بول کا. کنٹینیوس پروسیس، بیہیویئرل چینج، ٹیمپرری چینج اونلی، گول اورینٹڈ. تو یہاں پر اردو میں بھی ہے، آپ اس کا جواب ٹک کر لیں. بعد میں اندرونی ترغیب کس سے پیدا ہوتی ہے کر بول کو انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے. یہاں انعام سے ہے، سزا سے ہے، سرگرمی میں دلچسپی ہے، فیئر خوف سے ہے. یہ کون سا جواب آ سکتا ہے دیکھو ٹک کرو. بعد میں سوال نمبر 4 ہے، لرننگ موٹیویٹڈ بائی گریڈس از کارڈ، نمبروں کے ذریعے سیکھنے کی کو کیا کہتے ہیں کر بول کو. اندرونی ترغیب، بیرونی ترغیب، سماجی ترغیب، کامیابی کی ترغیب کر بول کو. جو یہ ہے آپشنس ہیں، کون سا آپشن صحیح لگتا ہے چوز کر لو. بعد میں وچ موٹیویشن گیوز لانگ ٹرم لرننگ، کون سا موٹیویشن لانگ ٹرم کی کون سی ترغیب دیر پاس سیکھنے میں مدد دیتی ہے. بیرونی ترغیب،
नेगेटिव तरगीब, अंदरूनी तरगीब, सोशल तरगीब, ये इसमें 4 में है, देख लो कौन सा कर को। बाद में फियर ऑफ पनिशमेंट इज़ रिलेटेड टू, सज़ा का खौफ किससे मुताल्लुक़ है कर को। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दी, पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन, इंस्टिंक्ट मोटिवेशन, सोशल मोटिवेशन। कौन सा जवाब आता टिक कर लो, बाद में है ना आंसर को चेक करो। मोटिवेशन मेनली अफेक्ट्स करबल को पूछ रहा, तरगीब बुनियादी तौर पर किसको मुतासिर करती है, टीचिंग को, लर्निंग को, सोशल बिल्डिंग को, करिकुलम को। ये 4 ऑप्शन ही, कौन सा ऑप्शन देखो चेक करो। उसके बाद विच फैक्टर डज नॉट नहीं है कर को पूछ रहा, मुतासिर नहीं करता कर को, नहीं करता कर को। टीचर बिहेवियर, क्लासरूम एनवायरनमेंट, पीर ग्रुप, हेयर कलर। आप जवाब दे सकते हैं इसे। अटेंशन मीन्स कर को, तवज्जा का मतलब क्या है, याद करना, जहनी यकसोई, भूलना, स्लीपिंग। कौन सा जवाब आता देखो। मोटिवेशन हेल्प्स इन कर को है, 4 जवाब मैंने दिया है, 4 जवाबों को ये करें, उसमें कौन सा आता देखो, चूज करो। उसके बाद एटीट्यूड इज़, रवैया क्या है कर को है, इसमें भी 4 ऑप्शन ही, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही दिखता उसे है ना तुम्हें ये कर लो, कर ले। ये करने से क्या होता है तो आप लोगों को जहनी यकसुई आती, प्लस है ना सही जवाब ढूंढने की सलाहियत आती। बाद में एटीट्यूड्स आर कर को, रवैया कैसा होता है, क्या होता है, कैसा होता है कर को। ये 4 ऑप्शन ही, यहाँ भी 4 ऑप्शन को ABCD इसमें देखो, देख कर आप जवाब देने की कोशिश करें। बाद में पॉजिटिव एटीट्यूड्स, ये क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड मजबूत रवैया किसका सबब बनता है कर को। अब यहाँ पर भी 4 ऑप्शन ही, ऑप्शन के तहत चूज़ कर लें, उसके बाद जवाब देने की कोशिश करें। विच फैक्टर्स शेप्स स्टूडेंट्स एटीट्यूड मोस्ट कर को पूछ रहा, तालिब इल्म के रवैये को सबसे ज़्यादा कौन मुतासिर करता है तो ख़ानदान और स्कूल का माहौल, वेदर मौसम, एज और हाइट। इसमें कौन सा आता देखो, ऑप्शन को टिक कर लो। बाद में अचीवमेंट मोटिवेशन रेफर्स टू कर को पूछ रहा, कामयाबी की तरगीब से क्या मुराद है। ऑप्शन 4 ऑप्शन है, सज़ा का खौफ, बेहतरी की ख्वाहिश, समाजी दबाव, बैरूनी इनाम। ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही दिखता है देखो, टिक करो। बाद में विच मोटिवेशन इज़ रिलेटेड टू सोशल रिकॉग्नाइजेशन, तो समाजी पहचान से मुताल्लिक़ तरगीब कौन सी है कर को। यहाँ भी 4 ऑप्शन ही, देखो ऑप्शन में एक ऑप्शन को टिक करो, का सही ऑप्शन को चूज़ करो। अगर गलत हो रहा है तो और नवे से एक टाइम सुनो और देखो, करेक्ट है पूरा चैप्टर। एक दिन मैं 1 घंटा पूछूँ तुम ना, 1 घंटे में तुम्हें इंशाअल्लाह कवर कर ले सकती हैं। लर्निंग विदाउट मोटिवेशन, अब यहाँ तरगीब के बगैर सीखना कैसा होता है का, तो 4 ऑप्शन दिया है, इफेक्टिव, डिफ़िकल्ट, परमानेंट, ईजी। अब यहाँ पर कौन सा आसान हो, तुम ना सही जवाब कौन सा दिखता है उसे टिक करो। बाद में विच इज़ ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, सीखने को मुतासिर करने वाला आंसर कौन सा है कर को। यहाँ भी 4 तय आंसर हैं, आप आंसर एक आंसर को टिक करें। उसके बाद टीचर मोटिवेशन मेनली हेल्प्स इन कर को पूछ रहा, इसमें भी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हूँ मैं, वो 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को जो करेक्ट है वो ऑप्शन को चूज़ करो। उसके बाद रीइंफोर्समेंट के बारे में सवाल हैं, तक़वियत किससे मुताल्लुक़ है कर को, इसे भी 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही दिखता वो देख लो। उसके बाद नेगेटिव मोटिवेशन कर को है, नेगेटिव मोटिवेशन में भी 4 ऑप्शन हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही दिखता आपको वो देखें। उसके बाद विच मोटिवेशन यूजेस प्राइज़ एंड रिवार्ड्स, सज़ा और जज़ा का इनाम, तारीफ़ और इनाम के तरकीब से इस्तेमाल होते हैं। तारीफ़ मोटिवेशन एंड प्राइजेस, तारीफ़ और इनाम कर वो ये है तरगीब, मैं जज़ा बोला गलत बोला, सज़ा बोल को सॉरी, तारीफ़ और इनाम को तरगीब किसे इस्तेमाल होते हैं घर को। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन देख लो चेक करो। उसके बाद एटीट्यूड इन्फ्लुएंसेस कर हो या किसको मुतासिर करता है का, तो यहाँ भी 4 ऑप्शन हैं, कौन सा ऑप्शन देखो टिक कर लो। उसके बाद मोटिवेशन इज एसेंशियल बिकॉज, तरगीब ज़रूरी है क्योंकि, क्यों है अगर को पूछ रहा, इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन को देखो चेक करो और उसके बाद आंसर को टिक कर रखो। एक सवाल लिख लो, 25वां सवाल,
उसका ऑप्शन तुम्हें क्या लिख रही हैं कर को वैसा। ये कौन सवाल मैं क्या लिखूँ, ए क्या बी क्या, लास्ट में चेक करने का आसान होता। अगर गलत हो आ रहा तो कहाँ होता कर को तुम्हें खुद ही मुहासेबा कर सकती कर को। ये इंटेंशन रख ले को तुम आंसर वहाँ पर नहीं करा सो। हाँ, क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड बी, क्लासरूम का माहौल कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर 4 ये दूँ मैं भी, उसके तहत जवाब चूज़ करें। विच वन इज़ द इंटरनल फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, तरगीब का अंदरूनी अंसर कौन सा है कर को पूछा। यहाँ भी 4 ये हैं, इसको टिक कर लें। उसके बाद विच हेल्प्स दी सस्टेनिंग अटेंशन, तवज्जो को बरकरार रखने में क्या मदद देता है अगर को। मोटिवेशन, नॉइस, ये थकान, फियर, इसमें 4 में कौन सा ये है देखो। बाद में एटीट्यूड डेवलप थ्रो, रवैये को किसके ज़रिए बनता है या सीख डेवलप करता है कर बोल को, उसका ये वो मेरा कहने का मकसद हुआ। डेवलप करना कर बोल को, एटीट्यूड डेवलप करना कर बोल कैसे किसके ज़रिए कर सकती हैं कर को। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हूँ, उसके तहत देखें, सही ऑप्शन को चूज़ करें। विच इज़ नॉट ए काइंड ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पर दर्जे झील में कौन सी तरगीब की किस्म नहीं है करके पूछ रहा। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, वो देखो। उसके बाद आखिरी सवाल है बेस्ट लर्निंग अकोर्स व्हेन मोटिवेशन इज़, बेहतरीन सीखना कब होता कर बिल्कुल। इसको 4 ऑप्शन दूँ, बाद में आखिर में की जवाबात हैं यहाँ पर। पहले को सी, दूसरे को सी। जब तक देखो ना को तब तक पूरा पेपर सॉल्व नहीं करते या नोट्स नहीं लिख लेते, तब लिख ले को। उसके बाद है ना करेक्ट चेक करो कि मैं कितने आंसर करी। बेहतर ये है कि आज का लेसन कैसा है, आपको एक छोटा सा आप लिख को डाल सकती, ताकि मुझे भी आपका एक मैसेज है हमारे लिए एक तरगीब का बाइस बनता है, और दूसरे को मोटिवेशन करने के लिए एक बड़ा ही अच्छा ये है एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है मुझे। आप लोग भी इस पर अमल करने की कोशिश करें, और आगे आने वाली ज़िंदगी में एक जो आपको जो सता रहे हैं, मतलब है उन्हें क्या पास करती छोड़, उन्हें क्या पास करती छोड़, हमना भी बहुत सता डाले बेटा ज़िंदगी में, लोग बहुत सता डाले, मगर आखिर है ना मैं ये टच कर को आखिर उस्ताद हो कुछ सपने आया। और अल्लाह के फजलो करम से आज आप लोगों की दुआ है कि पूरे स्टेट में तकरीबन हर ज़िले में मेरी आवाज़ एक नहीं एक बच्चा सुन रहा। ये सब आप अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआ है। और जो आप लोग मुझे मोटिवेशन कर रहे हैं, जो मैसेजेस कर रही हैं, और ये जो कमेंट्स डाल रही हैं, उसका मैं मेरा कमेंट्स डालना, मेरा आज का एक जो 2 बच्चे कमेंट डाले थे, वो कमेंट को मैं अपना ये बनाया था आज व्हाट्सएप में स्टेटस डाला। क्यों बोले तो दूसरे बच्चों को भी ये तरगीब मिलें देखने की, तक मेरी तमन्ना। और आप लोग भी अच्छे कमेंट्स डालें, अगर मेरी गलती रही तो गलती भी कमेंट्स में पेश करें, ताकि मैं अपनी गलती को सही कर सकूं, और आप लोगों को और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये दे सकूं। और जब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।